اجازت دیں پھر یہ اللہ مفتی نے کے صاحب، بعد انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. مفتی صاحب ایک ولی سے اگر ولی کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے یا نہیں؟ یہ مجھے جاننا تھا. جی یہ حدیث قدسی ہے بخاری شریف کی. جی، کیونکہ میں جس سلسلے سے مرید ہوں نا، سید محمد مبارک علی شاہ گیلانی قادری سلسلہ، جی ماشاء اللہ ماشاء ان کے جو مرشد ہیں، سوری ان کے جو دادا حضور ہیں، دادا حضور سید احمد حسین شاہ گیلانی محبوب ذات منڈیر شریف سیالکوٹ، اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. میں نے ان کی تصویر لگائی جس ٹائم یہ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے تصویر لگائی اپنے مرشد کے دادا کی نا، تو آگے سے قادیانیوں نے مختلف باتیں کرنا شروع کر دیں، تو مجھے کہا کہ آپ ان کی کوئی کرامت بتائیں. ٹھیک ہے، میں نے پھر کرامت شیئر کر دی، بتا دی. اور آپ کو پتہ ہے کرامت تو وہ معاملہ ہوتا ہے جس کو ذہن نہیں مانتا لیکن وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس طرح حضور پاک کے دور میں معجزات تھے، حضور پاک کی گواہی دینے کے لیے ایک درخت آ گیا تھا، جڑیں نکال کے باہر گواہی دینے کے لیے آیا. ٹھیک ہے، وہ حضور پاک کا معجزہ تھا. تو اسی طرح اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں. تو میں نے جب اپنے مرشد کے دادا کی کرامت بتائی نا، آگے سے ان قادیانیوں نے میرا مذاق بنانا شروع کر دیا اور مجھے کہا، چیلنج کیا انہوں نے کہ تم ایک اگر کسی کا مقلد ہو نا تو تم بھی کرامت کر کے دکھاؤ. تو میں نے پتہ کیا اس کو کہا، میں نے کہا اس کے لیے آپ کو میرے سامنے بیٹھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آمنے سامنے، آنکھوں میں آنکھیں ہوں گی، سینے کے سامنے سینہ ہوگا، تاکہ پتہ چل جائے نا کہ واقعی میں جن کے ساتھ جڑا ہوا ہوں وہ بھی کوئی کامل ہے یا نہیں. لیکن یہ مقابلہ پھر آمنے سامنے بیٹھ کے مباہلے کا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی کیمرہ آن کریں. نہیں نا، کیمرہ کیا آن کرنا ہے، آمنے سامنے کا جو لطف ہے نا، جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہے. تو جب آپ نے یہ بات کی، کرامت اپنے مرشد پاک کی سنائی، تو انہوں نے پھر آگے سے مرزا جی کی کوئی کرامت نہیں سنائی آپ کو؟ سر وہ تو فضول بکواسات کر رہے تھے کہ آپ کے اگر نہیں نہیں، مرشد پہنچے میں تو ایسے تو ایسے. جی جی وہ بڑی روحانی باتیں ہوتی ہیں وہ. جی تو میں آپ کو سناؤں کوئی حضرت مرزا صاحب کی کوئی کرامتیں دو چار؟ جی، ان کے ذرا جو آپ نے کہیں آپ. جی ٹھیک. تو چلیں جی پھر ہم بھی مرزا جی کی کوئی دو چار کرامتیں یہاں سناتے ہیں. یہ پوری اپنی مرزا جی نے نا اپنی کرامات کی پوری کتاب لکھی ہے، حقیقت لبئی، جو کہ روحانی خزائن جلد 22 اور صفحہ 246 کے اوپر ایک ان کی کرامت لکھی ہوئی ہے، کرامت نمبر 85. کہتے ہیں جی وہ میری ایک کرامت ہے کہ مجھے نا ایک مرتبہ کلنج ظہیری سے سخت میں بیمار ہو گیا اور 16 دن پخانہ کی راہ سے خون آتا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر. یہ ہے جی حضرت مرزا صاحب کی کرامت اور معجزہ اور نشان کہ ان کے وہ بواسیر کے مرد کی وجہ سے نا ان کے پچھواڑے سے خون آنا شروع ہو گیا، 16 دن تک خون آتا رہا، لہو لوہان ہو گئے ہیں حضرت صاحب. تو درد پیڑ بڑی ہو رہی ہے جی، للہ لے رہے ہیں، مر گیا اور رڑ گیا. اور ساتھ وہ بتاتے جا رہے ہیں یہ اصل میں میری کرامت ہے، معجزہ ہے. یہ جڑا خون ہوندا ہے نا پیا ہے میرا معجزہ جے تے میری کرامت جے. تو یہ کرامت سنائی تھی کہ نہیں انہوں نے شہنشاہ بھائی؟ نہیں جی، مبشر شاہ صاحب یہ نہیں سنائی مجھے. اور لے بھول گئے ہونے نے، بھول گئے ہونے نے. نہیں تے انہاں نوں رٹی پئی ہے کہ چلو ایک اور کرامت سنو. اچھا جی، سناؤ. سنو ہن کرامتاں سنی جائے جے. جی جی. لو جی یہ ابھی میں نے اپنے ٹک ٹاک کے اوپر یہ کرامت ابھی اپلوڈ کی ہے، تو میں اپلوڈ کر کے ادھر آیا ہوں. تو یہ اگر آپ نے حوالہ دیکھنا ہوا میرے ٹک ٹاک کے اوپر ابھی جسٹ کوئی 5 منٹ پہلے اپلوڈ ہوا. صحیح. یہ جی کتاب ہے سیرت المہدی ہے اور صفحہ
522 है हिस्सा सोम, और कादियानियों की चूंकि ये हदीसों की किताब है तो हदीस नंबर है 511। मिर्जा निजामुद्दीन को बुखार हो गया, बड़ा सख्त बुखार हो गया, और बुखार दिमाग को चढ़ गया जनाब। उन्होंने बुला लिया हजरत मसीह साहब को, मसीह साहब आओ इतना बुखार लाओ। ते मसीह साहब नूं आंदे ने ना अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी। उन्होंने क्या इत्थे ना एक मुर्गा ज़बा करो ते मुर्गा कोवो ते ओनू ना इहदे सिर ते बन्नो। समझ आई जे? लो जी वो भी शदोले शाह दियां चूहियां मुरीद उन्होंने उन्होंने ना आओ देखिया ना ताओ, मुर्गे नूं ढा लिया ते ओनू सिर ते बन दिता। यह करामत जनाब हजरत जी की करामत जाहिर होगी, बुखार लै गया। ए करामत इनू कहंदे समझ आई कि नहीं? पता नहीं कित्थों करामत लभदे हो, इनू कहंदे जे करामत। सही। ते ओ ना असल च थोड़ी जी कमी रह गई है भाई कादियानियों कि हजरत मसीह साहब ने ए ते दस्सिया है कि बुखार लाने दा नुस्खा है कि मुर्गा ज़िबा करके सिर ते बनना है, लेकिन वो खंभा समेत बनना है कि खंभ ला के बनना है। ए जरा थोड़ी जी दस दिया जे सानू कि करामत जी अधूरी ना रह जाए, अभी कोई पुठा ही काम ना कर बई। ए कादियानी नाले जरा ए भी दसो कि तुहानू जो बुखार चढ़ते ने ते ए हजरत जी का ए नुस्खा इस्तेमाल करते हो कि नहीं करते? मैं ते ना पैनाडोल दियां गोलियां खानियां बंद करो ते पैनाडोल दी जड़ी कंपनी है उन्होंने तुसी परां सुटो ते ए मुर्गे ही ज़िबा कर करके बनो। लेकिन ए पहले दसना जे कि खंभ लाने ने कि नहीं, कि खंभा समेत ही बन लेना है। इनू कहंदे जे करामत। समझ आई कि नहीं? अच्छा एक और करामत सुनो, हेलो हजरत मिर्जा साहब फरमाते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द 2 और सफ़ा 99, करशी ने खुद अपनी अड्डी में सुराख होकर और फिर इस राह से मुद्दत तक बराज यानी पखाना आते रहना तहरीर किया है। करशी उन्हें लिखिया वे ए मिर्जा जी फरमांदे ने, मिर्जा जी की करामत है, पता नहीं कितों कढ़ लिया इन्हें। करशी दे पता नहीं खाबो ख्याल च भी नहीं होना ते उन्हें पता नहीं बस ओदी तरह मनसूब कर दी है। बस ए हुण करामत पता नहीं करशी दी है या हजरत मसीह दी है, ये तो हुण कोई कादियानी ही दसेगा ना कि ओ जनाब अड्डी दे विच हो गया सुराख ते ओदे च पखाना आ रहा जनाब। हेलो इनू कहंदे जे मौजदा ते करामत। ते ए करामत मैं थोड़ी देर बाद ना इत्थों जदों जावांगा ना ते अपलोड करन लगा वां, ए मेरी टिकटॉक ते तुहानू लभ जाएगी ए करामत। मुफ्ती साहब पेंसिल चुभी ते मिर्जा साहब बच गए, फिर भी ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ बच गए। अच्छा जेड़ी चीज दा नाम तुसा पेंसिल रखिया ना, मैनू लग गया पता। साहिल थोड़ा थोड़ा शरारती है तू, तू है थोड़ा थोड़ा शरारती है। ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਚੁਭਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ। हेलो जी करामत सुनो, रूहानी खजाइन जनाब, रूहानियत रूहानी करिश्मे जनाब, चश्मे जारी होने लगे जे। रूहानी खजाइन जिल्द 23 है, चश्माए मार्फत, आए हाय बल्ले, और सफ़ा 171 ते 172। एक ये भी देखा गया है कि जब एक गुलहरी को पत्थर या सोटे से मारा जाए और वो बज़ाहिर बिल्कुल मर जाए मगर अभी ताज़ा हो, तो अगर उसके सर को गोबर में दबाया जाए तो चंद मिनट में वो जिंदा होकर भाग जाती है। बल्ले बल्ले ओ बल्ले, इनू कहने च करामत। समझ आई जे कि गुलहरियां नू मारो पहले सोटे, फिर उन्होंने
ਗੋਬਰ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਸਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੱਸਣ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਆਪਸ ਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਓਏ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਖੋਦੀਏ ਨਾ, ਖੂਹ ਖੋਦੀਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਬੋਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਬੋਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੋਨੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਬੋਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੋਨੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੋਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਜੇ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਸੁਣੋ, हजरत जी की फरमाते हैं, रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफ़ा 103 ते चश्माए मार्फत। फरमाते हैं हजरत मसीह साहब, मसलन जमीन के नीचे का तबका जो 70-80 हाथ तक खोद कर फिर दिखाई देता है, इसमें जानदार पाए जाते हैं बड़े बड़े। समझ आई जी? ਇਹ ਸ਼ੁਰਲੀ ਅਸਲ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਇਹ ਜੇ ਕਰਾਮਤ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਟੋਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੌਂਦੀ ਚੌਂਦੀ ਕਰਾਮਤ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ। ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਰਲ ਕੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ। रूहानी खजाइन जनाब खुल गई है, जिल्द 23 सफ़ा 125 चश्माए मार्फत। अगर तुम मसलन दूध को जो बासी होकर सड़ने को है हाथ में लो और खूब उस दूध में नजर लगाए रखो, तो तुम्हारे देखते ही देखते हजार कीड़े बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, सारे लाओ नारा सुभान अल्लाह, मिर्जा जी की जय हो। हाँ भाई आमिर की हाल है भाई से? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। शाह जी आप सुनाएं, सब खैरियत? सब सब शाह जी मैंने कहा ਹੁਣ कि ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨੀ ਤੇ हजरत जी ਦੀ ਇਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। शाह जी मैंने सोचा कि आप मिर्ज़ा साहब के दुबरी निशानात पब्लिक के सामने बाहवाला रख रहे हैं, तो क्यों ना आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं इस्तफसार ये करना चाह रहा था कि मिर्ज़ा साहब की वो कौन सी करामत थी कि जो मर्दानगी हालत थी वो तो ख़त्म थी मगर बच्चे धड़ाधड़ निकल रहे थे, ये क्या चक्कर है? ये कौन सी करामत थी मिर्ज़ा साहब की? जी शाह जी इधर थोड़ा रोशनी डालिएगा। वो ये रूहानी खजाइन थे ना, रूहानी बातें हैं मौलवी साहब। मौलवी साहब और आमिर साहब की समझ थोड़ी आनी है, रूहानी बातें भाई, रूहानी बातें। हजे हूँ थोड़ी देर पहले वो मैं दसिया निशान 85 उत्थे लहू नवान हो गया पछवाड़ा हजरत जी का, उत्थे वो जनाब वो आंदे ने मेरा निशान। हूँ दसो बंदा करे ते करे किधर जाए, बंदा रोवे कि हसे? हाँ जी, ते जेड़ी कौम दियां ए करामतां जे ना, ओ कौम ए मस्त हो जांदी, मजनू कौम। वल्ला जदों ए हजरत मिर्जा साहब दे ए मौजजात ते ए करामतां बयान करदे ने ना मुरब्बी अपने मुरब्बी खाने च, ओए होए होए ओ लुडियां पांदे नी, ओ भंगड़े पांदे नी है। ओ ना अलीम मुरब्बी है ना, अलीम मुरब्बी, इन्हें बनाया ही एक चैनल, वो चैनल बनाया ते जनाब ओदे च सिर्फ मौजजात दा चैनल। ए तो ए मेरे सामने ही है, एक मिनट एक जी 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 असल देख नहीं तुसी वो वहां मौजूदा ए सुने अगर सिर्फ टाइटल थंबनेल सुनिया जे, सिर्फ थंबनेल तुसी तुसा सिर फड़ के बैठ जाना है की है। लो सुनो जी, हाथ की चंबल दूर करने वाला मोइजा, ए थंबनेल जे। वाह वाह, मोजा बहरापन दूर, टीबी वाला मोइजा, छोटे कद वाला मोइजा, हजूर के लुआब मुबारक वाला मोइजा। शुक्र है छोटे कद वाला सी, छोटे तनासुल वाला। हाँ, और तुसी हुने ना तुसा ला लेने ने लितर
ਤੇ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਮੁਰੱਬੀ ਹਲੀਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਹੈਲੋ बहुत अच्छे, वाह। नेटफ्लिक्स वाला आना है हाले। हाँ जी और इधर अंडे वाला मोइज़ा अंडे हेलो क्या कह रहे हैं? हस्पताल वाला मोइज़ा हाँ जी भूख वाला मोइज़ा ते बहरेपन दूर वाला मोइज़ा ते गिलास वाला मोइज़ा खरबूजे वाला मोइज़ा डंडे वाला मोइज़ा मछली खाने वाला मोइज़ा माँ के पेट में बच्चा बोलने वाला मोइज़ा पेट्रोल वाला मोइज़ा है लो पेट्रोल वाला मोइज़ा वो गड्डी ना एक कादियानी मुरब्बी दी चलती रही है आंदा जी है हजरत मसीह साहब दा मोइज़ है हेलो इमली ते आलू बुखारे वाला भी है जे, ते वो भी दे दिया जी। नहीं नहीं वो नहीं हुआ है वो फिर लाहौर वल्ला मैं वाला झूठ लग नहीं गया ना जे मौजूद। वल्ला मैं झूठ नहीं जे बोलदा पिया ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਚੈਨਲ ਜੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਫੇਥ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਅਲੀਮ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੌਇਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲਾ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਹੁੰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੌਇਜ਼ਾਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਮਰੇਜ਼ਮ ਸੀ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਸੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਜ ਦੇ ਮੌਇਜ਼ਾਤ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੰਜ ਤੇ ਆਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਾਲੇ जी करो गल यार करो मैं थोड़ा मसरूफ होने लगा नहीं ये तो ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੋਲ ਪੱਟੀ ਖੋਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਾਤ ਦਾ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਟਾਈਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਬਾਰਤ ਪੜਾਂਗਾ ਹਵਾਲਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद दूसरे खलीफा इन्हों दे कहते हैं मुझे बचपन में शौक़ था कि तमाशा घर जो हथकंडे वगैरह करते हैं उन्हें सीखूं। एक दफ़ा हमारे एक अहमदी दोस्त यहाँ आए और उन्होंने बहुत से तमाशे दिखाए। मैं उस वक़्त छोटा बच्चा था। मैं पूछना ये वे कि जवान अहमदी ने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब जो कि छोटे बच्चे थे ये क्या तमाशे दिखाए थे इनको बचपन में। ए ज़रा को सवाल है थोड़ा को मज़ीद जड़ा वे वो हवाला मुतालबे से दे दिया जाएगा। ये छोटे बच्चे को क्या दिखाया ऐसा। बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ साहब कहते हैं जी मुझे उन्होंने किस्म के तमाशे दिखाए। ये तमाश बीनी जमात जड़ी है की करती रही है। यह सवाल है जी। बाकी दीगर भाई गल कर लें। अच्छा दूसरा ये वे कि जड़ा मुफ्ती मुबशर अदा कादरी साहब माशाअल्लाह बा हवाला बहा रहे सन निशान नंबर 85 के हवाले नाल वो असल दे विच करामत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾਣਾ ਐਸੀ ਅਸਲ ਕਰਾਮਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਪੈਡਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 16 ਦਿਨ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। हेलो ए सुनिया जा जरा हेलो सुन लो। अक्सर दोस्त सवाल कर रहे हैं कि वो वाला इलेक्ट्रॉनिक गेट वाला ਸਾਰੇ ਪਾਲਟਾ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਮੀਰ ਭਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਮਿਰ ਹੱਕ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਖਾਸ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਵੀ जी फैसल अच्छा यार जरा सुनिया जो भाई अक्सर दोस्त पूछ रहे हैं जरा सुनिया जो जरा जनाब अब्दुल माजिद ताई साहब ने हमें सुनाया वो वाकया कहाँ पर है वो लिटरेचर में भी आ गया ये नहीं आया वो कहाँ पर दर्ज है कहाँ पर हम उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर है और साथ में बल्कि एक मुख्तसर साथ तारुफ भी एक और उसकी है नंबर जो छपा है इसके सफर दौरान एक दिलचस्प पर 282 के ऊपर भी आपको ये वाकया मिलता है। तो सुनते हैं रबी साहब की जुबान।
2005 में मॉरिशस के सफर के दौरान एक दिलचस्प वाकया पेश आया। हुजूर अनवर ये ताला बिन नसर अजीज का जिस घर में क्याम था उसका बैरूनी गेट इलेक्ट्रॉनिक था और रिमोट कंट्रोल के जरिए खुलता था। काफिला की तमाम गाड़ियां अंदर पार्क होती थी। एक दिन 10-11 बजे वहां से रवानगी का प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम के लिए जाना था, तैयारी हो रही थी। जब खुदाम गेट खोलने लगे तो गेट ना खुला। इस हर तरह से रिमोट के जरिए कोशिश की लेकिन गेट ना खुला। इस पर खुदाम ने प्रोग्राम बनाया कि हम पिलर समेत गेट को काट देते हैं ताकि काफिला वक्त पर रवाना हो सके। हमारे मेजर महमूद साहब भी वहां थे, उन्होंने भी काफी कोशिश की लेकिन गेट ना खुला। अब ये बातें हो रही थी कि ऊपर से हजूर अनवर दूसरी मंजिल पर ठहरे हुए थे। हजूर अनवर बिन नसर अजीज बाहर तशरीफ लाए और फरमाया क्या मसला है। हजूर अनवर की खिदमत में अर्ज किया गया कि रिमोट काम नहीं कर रहा और गेट नहीं खुल रहा। इस पर हजूर ने फरमाया कि रिमोट मुझे दे। हजूर अनवर ने रिमोट लिया और बटन दबाया तो साथ ही गेट खुल गया। ਇੱਥੇ ਰੱਖ तो ਇੱਥੇ हमें ਰੱख लगे कि ये तो खुल गया है। जी कनाडा के सफर में वाकया मेरे साहब ने बड़ा खूबसूरत पढ़ा है और बिल्कुल ऐसे ही इस जगह पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है। तो बहरहाल मेरा काम हाँ, और हैरत वाली गल है पूरी किताब छाप छड़ी जे। किताब का नाम है हजरत मसीह मऊद और खुलफाए कराम के ताल्लुक बिल्ला के वाकयात और सफा 119 और वड्डी सारी सुर्खी दी है मोजजा पहली मर्तबा लाइव देखा है। हेलो सुन लिया, रिमोट कंट्रोल वाला उन हाँ रिमोट कंट्रोल वाला मोइजा। ਯਾਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਤੇ ਯਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਰਕ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਜ਼ਾਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਸੈੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਚਬਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੋਤੀ ਦਿਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਅੰਨੀ ਦਿਓ। हाँ बिल्कुल है जी। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਐਸੇ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਲਤਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੋਇਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਆਈ ਏ। ਉਹਦੇ ਲੱਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੁਰੱਬੀ ਦੇ, ਉਹ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਲਤਾੜੇ ਵਾਲਾ ਮੋਇਜ਼ਾ। ਅੱਛਾ, ਸੁਣਿਆ ਜਰਾ, ਇੱਕੋ ਲੱਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਆਈਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਆਈ ਬਸ ਠੀਕ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। मेरे एक पांव पर हुजूर का पांव पड़ गया। मेरे पांव पर हुजूर का पांव पड़ते ही मेरी उस टांग की दर्द खत्म हो गई। कादियान में एक साहबी की टांगों में बहुत शदीद दर्द रहता था। बड़े इलाज करवा कर देख लिए लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा था। एक दफा हजूर ने गलती से अपना पैर मुबारक उनके पैर पर रख दिया तो उनकी टांग की दर्द जाती नहीं। हेलो सुन लिया जी? हेलो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬॉयਜ਼ ਆ ਯਾਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਯਾਰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੱਚਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਪ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਲੱਕੜਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਏ, ਇਹ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਸਰਾਪਾ ਮੁਜੱਸਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨਿਊ ਸੀ ਉਹ ਟੋਟਲ। ਹਾਂ ਜੀ, ਚੀਫ ਆਫ ਆਲਮੀ ਅਮਰਾਜ਼। ਆਲਮੀ ਅਮਰਾਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ। ਔਰ ਐਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਐਸੀ ਉਹਨੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਬਕੀ ਏ, ਐਸੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਬਕੀ ਏ। ਅਲਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫੀਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਾਵਾਂ। रूहानी हुसैन जिल्द 3 सफा 258 ਦੇ ਉੱਤੇ मिर्जा कादियानी कहता है अगर ये आजिज इस अमल को मकरू और काबिल नफरत ना समझता तो खुदा ताला के फजल व तौफीक से उम्मीदें कवी रखता था कि इन अजूबा नुमाइयों में हजरत मसीह इब्ने मरियम से कम ना रहता। लेकिन मुझे रूहानी तरीक पसंद है जिस पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम मारा है। हजरत मसीह के अमल तिरब से वो मुर्दे जो जिंदा होते थे
ਅਮਲ ਤਿਰਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੋਭਦਾਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह ਅਸਤਗਫਿਰੁल्लाह। ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, और तमस्कुर कीता सू, इन्ना तमस्कुर होए सवाल पूछना आपसे। अच्छा, जेड़ा सवाल असी पूछया ओदा जवाब किदन लभना सानू? मैं अभी आया हूं आपके बरोड पे, मुझे क्या तू अभी ही आना होना वे कि जेड़े असी सवाल करने आ वो सवाल नहीं ते सवाल तुहाडे ही हुंदे ने। चक्कर की है यार मुरब्बी जी? यार मेरे सवाल दा जवाब दे दे। मतलब क्यों असी क्यों जी तो नौकर तुहाडे असी मुलाजम लगे तुहाडे सवाल दा जवाब दईए? नहीं ते तुसी आलम दी ਤੁਹਾਡੀ ट्रीटमेंट होने दो जरा। आबिद भाई एक मिनट, इन्हां दी ट्रीटमेंट होने दो जरा जी। अरे जितू आएगा आबिद, मेरा एक सवाल ते जेडे ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਪਛਵਾੜੇ ਚ 16 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਦਵੋ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ। इसका जवाब ये है कि देखें, मेडिकल रीजन हो सकती है, कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो इसमें क्या नहीं मैं पूछा, मेरा सवाल पहले सवाल गंदम जवाब चना ना करो। मैं सवाल है क्या वे कि इधर ओए आम बीमारियां दी गल नहीं, बंदा आम होए ते फिर आम बीमारी हुंदी है, बंदा खास है, दावा ओदा नबूवत दा है, दावा ओदा मसीहियत दा है, दावा जितू वड्डा होएगा ते ओ फिर वैसे ते तुसी हर चीज नु कुरान दे नाल जोड़ दिंदे हो कि कुरान 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 ते हुन किधर गया जे कुरान? मुफ्ती साहब ये कादियानी नहीं है, ये मुसलमान भाई ने। हाँ जी जानना वा जी, जिड्डे वड्डे मुसलमान ने। छड़ दिया करो आबिद भाई, आबिद हुसैन भाई छड़ दिया करो। मुसलमान ने अस्सलाम वालेकुम इंज दे हुंदे ने, सारे मुसलमान ही हुंदे ने। हाँ आबिद दस बीमारियां हुंदियां ने। बताया ना मुफ्ती साहब, बीमारियां हो सकती है क्या? जो पैगंबर थे, नबी थे, रसूल थे, उनको भी तो नहीं। पहले ये बताओ कि सबसे पहले ये बताओ कि मिर्ज़ा कादियानी के इस मौजज़े को मानते हो? मौजज़ा नंबर 85, निशान 85 को मानते हो कि नहीं? नहीं देखे, मैं तो उन सब मौजज़ों के मानता हूँ, ईमान रखता हूँ, यकीन रखता हूँ जो मौजज़ों का जिक्र कुरान में है और हदीसों में है। मैं जो पूछ रहा हूँ, मैं तेन छड़ता बच्चे थले जांदा तू कट्टे थले है पिया। मैं कहना मिर्ज़ा कादियानी के इस मौजज़े को मानते हो कि नहीं? नहीं, मैं मिर्ज़ा साहब के इस बात को मौजज़ा नहीं मानता, और मिर्ज़ा साहब जो खुद थे और उनके फॉलोअर है वो तो मौजज़े को नहीं मानते ना, कुरान के मौजज़े को, वो तो किसी भी मौजज़े को नहीं मानते। कुरान के मौजज़े की बात ही नहीं कर रहा मैं, कह रहा निशान 85 को मानते हो कि नहीं? ये निशान 85 मुझे क्या पता क्या है। मिर्ज़ा कादियानी के पछवाड़े से 16 दिन तक खून आता रहा और उसको पीड़ बड़ी हो रही थी, दर्द बड़ी हो रही थी, अच्छा खुरक भी हो रही थी। सही है, तो इसमें मौजज़े मानते हो कि नहीं? फिर इसमें मौजज़े वाली क्या बात है? ये तो डिजीज है कोई। यही तो मौजज़ा कि लोकां दे पछवाड़े च शायद एक दिन आंदा है ते उन्हां दे पछवाड़े च 16 दिन तक आंदा रहे। ए घट मौजज़ा की शिद्दत ज्यादा होगी ना, ओही ना शिद्दत वाला मौजज़ा, इन्हू कहो शिद्दत वाला मौजज़ा। नहीं, मौजज़ा इस बात को किधर मौजज़े से बुला रहे? देखे, मौजज़े एक अल्लाह की तरफ मैं नहीं बुला रहा, मिर्ज़ा कादियानी बुला रहा है, वो कह रहा है का नाम ले रहे हो, पछवाड़ा, खून, शिद्दत, और साथ में मौजज़ा मिर्ज़े ने कहा है पछवाड़ा, मक्कद पछवाड़े को कहते हैं ना। वो मिर्ज़े को जाके कहो ना, मिर्ज़े ने कहा है मक्कद से, मक्कद को क्या पछवाड़ा नहीं कहते? बताओ तो किसकी मक्कद से आ रहा था? मिर्ज़ा जी की। तो इसमें मौजज़े वाली बात क्या होगी फिर? ये बताओ। ये मिर्ज़ा जी को जाके पूछो ना, मुझे तो ना पूछो। नहीं, आप नहीं मानते, ट्रू मुस्लिम इसको नहीं मानते, तो आप 17 दिन तक निकाल के दिखाए ना अपनी मकद से, फिर मानेंगे। या तो तुसी मुकाबला करो ना मिर्ज़ा जी दा, उन्हें एवें निशान बनाया 16 दिन तक खून आना खाला जी दा हलवा है, कटो ना जरा जी। नहीं, वो हर बंदे की बीमारी की कोई शिद्दत, कोई मेडिकल रीजन होती है, कोई मेडिकल रीजन को निशान या मौजज़ा नहीं कहा जाता, मिर्ज़ा साहब ने कहा है। मैं भी कह रहा हूँ ना कि इसमें मौजज़े वाली क्या बात है। तो आप अगर आपने मुकाबला करना है तो आपको कम से कम 16 दिन और कोई 1 घंटा ऊपर खून आना चाहिए, फिर मुकाबला होगा। ये सीधी सी बात है, वरना आपको मानना पड़ेगा, वरना साफ समझा जाएगा कि आपको भी बनने का शौक है। हाँ, ये है कि अगर किसी के साथ इस तरह का मसला हो
और उसको बाद में अल्लाह ने शिफा दे दी हो, अच्छा तो वो ठीक, ये वो करामत बात होगी। बता सकते हो कि उसने इलाज करवाया हो, तो फिर आप उसको बता नहीं सकते हो कि इलाज भाई कर, मैंने ओ ये इलाज, इलाज ओ करवाया भाई था, भाई ये भाई, दवाई खाई थी, मुझे ओ फाका प्यारे हो गया भाई, था। ओ प्यारे भाई, जानवर बीमार होते हैं, उनका इलाज होता है, वो भी ठीक हो जाते हैं। करामत कह दें क्या? मिर्जा साहब का नहीं, वही तुकबंदी मैं तो कह समझा रहा है हूँ ना ना, कोई। इसमें करामत वाली या बात वाली क्या नाम है, हाँ तो मुआजिजा फिर वाली कोई मिर्जा बात साहब नहीं के, है। इस मिर्जा साहब की कोई वजह ये नहीं होता कि बंदा बीमार हुआ तो ठीक हो जाए, वो तो आम बंदा भी हो सकता है। मुआजिजा कैसा हुआ, करामत कैसी हुई, ये है सारा मसला। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इसमें मुआजिजे वाली बात मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। हाँ तो बस ठीक हो गया। नहीं नजर मुआजिजा आनी, तो फिर पा दियो लानत मिर्जा कादियानी ते, पा दियो हाँ लानत है, बीमार लफ्जी लानत होना है। और बीमारी लगाता और भी चल है। यार, नहीं चल लानत पा देना यार, की हो गया बे ते हाँ, बस नहीं, लानत पा के तुझे की कराना है मेरे को? ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜੇ ਆਪੇ ਤੇ ਹੋ ਨੇੜੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਸੀ। अच्छा शाह जी पता की कहते ने, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦਾ, नहीं, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਕਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ। ਵਾਜਾ ਉਹ ਯਾਰ 100 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ ਆਬਿਦ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਟੌਂ ਕਰਕੇ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਟੌਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਆਊ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਊ ਆਊ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਊ ਕਿਉਂ ਆਊ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਟੌਂ ਜਾਂ ਆਊ ਜਾਂ ਜਾਊ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਆਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੋਲ ਕੇ ਸਵਾਲ। ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਬਈ? ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਇਤਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲੰਡਾ ਖੁੱਲੇ ਆਵੇ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੱਚੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਦੱਲਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਉਹ ਖੂਨ, ਪਛਵਾੜਾ ਤੇ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਝਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਜਿਲਦ 22 ਸਫਾ 246, ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ 85। ਆਪੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਕੀ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਪਾਈਲਸ ਦਾ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ 3-4 बंदे ने, और भाई टॉपिक चल रहा है मिर्जा साहब के निशानात के ऊपर, मिर्जा साहब की सदाकत, डंका इलाही जमात 300 मुल्का च फैल गई है। 300 मुल्क ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ 300 ਮੁल्क। नहीं जमात तो फैल गई है ना, भावें ना होन, बाद च बनते रहणगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ ਹਾਂਜੀ और जनाब नगर दे विच, जनाब नगर दे विच खाली कबरां, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤਦਾਦ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਮਿਰ, ਤਦਾਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਤੇ। हाँ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਲਸੇ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਆਬਿਦ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। लो जी, रोजनामा अल फजल अखबार और 4 जून 2012 का शुमार है, डेट नोट कर लें, 2012 4 जून। लो जी, यहां पे लिखा है कि जमात की जो तादाद है कई मिलियन की है। मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 200 मिलियन के करीब है। लग गया जी पता? 200 मिलियन यानी 20 करोड़। हाँ, नाल ही नस गया जी, और नाल नस गया। लो जी, अगले साल की बने है जनाब, अगले साल 24 अक्तूबर 2013 का शुमारा है, रोजनामा अल फजल। तादाद लिखी है कि अब हम 150 मिलियन हैं। डायरेक्ट 50 मिलियन बंदा घट गया जनाब। तौबा तौबा तौबा। यानी एक साल दे विच 50 मिलियन बंदा घट गया। वो किधर गया है कादियानियों?
ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਹੈਲੋ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਰ ਮਰਾ ਕੇ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੋਂ। ਹੋਏ 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 ਮਿਲੀਅਨ ਵੇ ਤੇ ਸਹੀ 200 ਮਿਲੀਅਨ। हाँ जी, यकीन करो मिर्जा ताहिर साहब ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ सा ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਝਟਕੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਹਾਂ से निकले थे। ये कोई तरीका नहीं है भाई, एक जगह ਤੇ टिको, ਇਹ कोई तरीका नहीं। अच्छा आमिर भाई जी भाई, एक मौजज़ा मैं भी सुना दूंगा ਤੁਹਾਨੂੰ। एक मिनट, आमिर हक भाई। वालेकुम सलाम। जी भाई। आमिर हक भाई, आपके वो जो आपसे कोई बंदा मुनाजरा करना चाहता था, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उसके बुला लूँ? अभी नहीं, मेरे पास अभी आधा घंटा होगा, बल्कि आधे घंटे का मैं उसके बाद बुला लें, यानी आप एक घंटे के बाद उसको बुला लेना, मैं वापस आ जाऊँगा। नहीं ठीक है, वो अपना फिर आप काम कर लीजिएगा। वो उसने भी फिर निकलना है, वो 11 के बाद 2 घंटे तक, तो ठीक है फिर कोई नहीं, आप अपना फिर यानी अभी मैं बाहर हूँ तो सिर्फ आधा घंटा है। ये शाह जी को मैंने देखा तो मैंने कहा चले सलाम दुआ भी हो जाएगी, थोड़ा हिस्सा डाल जाएगा, तो आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह फिर वापसी होगी। ठीक है जी ठीक है। शायद उस वक्त वो मसरूफ होंगे, लेकिन ठीक है फिर नहीं, उसके बाद फिर कोई टाइम देख लेंगे ना, मैनेज कर। जी ठीक है आमिर भाई, ओके। जी मुफ्ती साहब एक मौजज़ा मैं भी सुनवा दूं। मौजज़ा हिस्सा पाना चाहिए। जी है कि हज़रत मुफ्ती सिलसिला हक को बेबाक साहिब बसीरत शख्सियत है, एक जर्री और बेदार मग़ज़ मुकर्रर है, इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज है, कलमो ज़ुबान के बादशाह हैं, दिलों को छू लेने वाला अंदाज़े बयान रखते हैं। आइए ये वाक़या हज़रत मुफ्ती सिलसिला की ज़ुबानी सुनते हैं। एक अब्दुल रशीद साहब बटाला वाले बयान करते हैं कि हज़रत मुफ्ती सिलसिला हक को बेबाक साहिब बसीरत शख्सियत है, एक जर्री और बेदार मग़ज़ मुकर्रर है, इल्म व अमल का हसीन इम्तिजाज है, कलमो ज़ुबान के बादशाह हैं, दिलों को छू लेने वाला अंदाज़े बयान रखते हैं। आइए ये वाक़या हज़रत मुफ्ती सिलसिला की ज़ुबानी सुनते हैं। एक अब्दुल रशीद साहब बटाला वाले बयान करते हैं, मैंने बैत कर ली, मेरे वालिद मुखालिफ थे, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे आग करने वाला हूँ। वो कादियान गए, हुजूर की खिदमत में अर्ज़ की कि मेरे वालिद शदीद मुखालिफ हैं और मुझे चंद दिनों तक आग करने वाले हैं, जिससे मुझे बड़ी परेशानी होगी, विरासत से महरूम कर। हुजूर ने फरमाया अल्लाह फजल फरमाएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँ। शेख साहब बयान करते हैं कि इस वाक़या के बाद 8-10 दिन के अंदर अंदर मेरे वाले साहब वफात पा गए। उन्हें खुदा ताला ने मुझे आग करने का मौका ही नहीं दिया। जी सुन लिया जी। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਰੇ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਤਹ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲਿllahi ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ। ਓਏ ਯਾਰ ਐਸੇ ਬੋਇਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਬਿਦ ਅਲੀਮ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਹਲੀਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਐਸੇ ਬੋਇਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ ਦੇ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ, ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। लेकिन मुफ्ती साहब सवाल भाई एक मिनट फिर मैं तबसरा जो मैं चाह रहा ना, जो आम अहमदी तक जाए, वो मैं कहना चाह रहा। पता है क्यों इन्हें गल सुनाई है भरे मजमे दे विच? इन्हें इस करके सुनाई है कि आम अहमदी नूं जिहड़ा ना धमकी लाने वास्ते कि देखो
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਤੇ 8 ਤੋਂ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਏਡੀ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਓ ਯਾਰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਬੜਾ ਭੈਣ ਚੋਦ ਦੇ। भाई ऐसे भाई गाली ना दें भाई। ਓਕੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲਾਨਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ। नहीं वो तो पाओ जी, वो जड़ा मुस्तहिक है ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਓ, ਨਾ ਪਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣੀ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। हाँ जी 100 बार जी, 1000 बार लिख के जी, 1000 बार। खरबा मेहरबानी। अच्छा आमिर भाई, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि वो बंदा तो 8-10 दिन के अंदर अंदर मर गया, लेकिन पंडित लेख राम ना मला मुबाइला के नतीजा में ममदी बेगम का सुल्तान बेग ना मरा, अब्दुल्ला आथम ना मरा, ठीक है, लेकिन ये बंदा 8-10 दिन के अंदर अंदर मर गया। हाँ, कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।